Welcome to Sushmita's maths class. Here, maths is made so easy and simple that you will all start loving it. जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दें। डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। मैथ्स से डर लगता है तो रोज वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। मैथ्स का डर भाग जाएगा। Children, today we are going to study about ratio and proportion. Ratio means comparing two quantities of same kind and in same unit. When we compare two quantities of the same kind, एक जैसे चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं with respect to magnitude, by division we call it a ratio. And ratio is just like fraction. जैसे फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 5/7, यहाँ हम लिखते हैं 5:7। इसको कहते हैं रेशियो। जो दोनों चीज़ों को कंपेयर हम करेंगे उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इज़ टू। जैसे फ्रैक्शन में इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, वैसे ही रेशियो में इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और इसको हम कहते हैं सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं एंड सेकेंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट, ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, रेशियो में एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। Just like in fraction, when we multiply or divide numerator and denominator by the same number, we get an equivalent fraction. Here also, the ratio remains unchanged if we multiply or divide this ratio by the same number. For example, if I have written 5/7 and I have multiplied it by 2/2, it becomes 10/14. And if we have to write it in ratio, we will write it like 5:7. In place of is equal to, we are writing proportion. This is the sign of proportion. So we will write it like this. Now when we compare, say we have these two and we are comparing, we are doing क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये जो हो गया 70 = 70। यहाँ हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड दीज टू। सो अगर ये दोनों, ये रेशियो और ये रेशियो प्रोपोर्शनेट है तो 5 × 14 will be equal to 10 × 7. We multiply or divide both the terms by the same number. That is called proportion. And the sign of proportion is, the ratio is said to be in simplest form. The terms in the simplest form cannot be further simplified. As we have learnt in fraction, when we reduce it to the lowest term, then their HCF is 1 and both the numbers are co-prime numbers. The two terms in a ratio should be expressed in the same unit of measurement. For example, we cannot compare a pen with a book. A ratio has no unit. Why? Because when we are writing it in the form of ratio, like A:B, this means A/B. So let's do one question to clear this. We have two terms to compare. 1 meter is to 50 centimeter. See, we have just said that we can compare the numbers when the two units are same. But here one is meter, another one is centimeter.
So we will change this to 100 centimeter is to 50 centimeter. Now we will cancel just as we do in fraction 100 by 50. So this will be 2 is to 1. While cancellation, if we write centimeter and centimeter, so we will cancel centimeter by centimeter. So this doesn't have any unit at all. No unit means a ratio has no unit just because we are cancelling the units. Let's find out the ratio of 20 boys and 15 girls. So here again in fraction we would have written like this. Here in ratio and proportion we will write it like this. But cancellation will be done like this. So use the divisibility rule of 5. When the numbers are ending with 5 and 0, both are divisible by 5. So cancellation 5 4s are 20 and 5 3s are 15. So it will be 4 is to 3. Now see, it has come to the simplest form. When these two are co-prime, they have HCF 1. We cannot further divide it anymore. So this is the ratio of the boys is to girls. When the first term and the second term have 1 as common factor, we can say the ratio in simplest term. In other words, their HCF is 1. If we have to find out equivalent ratios, so equivalent ratios can be obtained by dividing or multiplying the terms by the same non-zero number. कोई भी non-zero number से अगर हम multiply और divide करें तो हमें equivalent ratios मिल जाएंगे. For example, अगर हमें 20:30 का equivalent ratio चाहिए तो what can we do? 20/30. See, it is not in simplest form, so we can change it into simplest form by simply dividing it by their HCF 2:3. This is in the simplest form, and now we have to find out more equivalent ratios. We can divide it by 2. We will get 10:15. We can even multiply. If we multiply it with 2, we will get 40/60. So we can write it like this. When we are dividing or multiplying by non-zero number, we are getting equivalent ratios. These are equivalent ratios. Let's do another question. Divide ₹40 in the ratio of 3:2. So the first thing we have to do is we have to add the terms of the ratio. These are the two terms of the ratio. See, 3:2. So we will add 3 plus 2 and we will get 5. That means total 40 rupees has to be divided into 5 parts. 5 parts कैसे? 3:2. एक को 3 मिलेगा और दूसरे को 2 मिलेगा. जब 40 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे, एक को 3 मिलेगा, एक को 2 मिलेगा. दैट मीन्स टोटल 40 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. कैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 2 + 3, एक को 3 मिलेगा, दूसरे को 2 मिलेगा, तो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 एक को दे देंगे और 2 दूसरे को दे देंगे. अब हम 40 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, या एक को 3/5 पार्ट्स मिलेंगे, 3/5 ऑफ 40, और दूसरे को मिलेगा 2/5 ऑफ 40. 5 हिस्सा करेंगे, एक को 5 के 3 हिस्सा मिलेंगे और एक को 5 के 2 हिस्से मिलेंगे, और 40 के हमें पार्ट्स करने हैं. तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. So 2/5 multiply by 40. A cancellation, 5 8s are 40. So एक को 16 रुपीज़ मिलेगा, 5 8s are 40, एक को 24 रुपीज़ मिलेगा. So रेशियो कैसे डिवाइड हो जाएगा? 24
4:16 ऐड करके देखो 40 आ जाता है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये किस तरह से सॉल्व करेंगे? इक्वल टू लिखा हुआ है जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से। 21 को 3 से डिवाइड करके देखो 7 आता है, यानी 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो 14 को भी हमें 7 से ही डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट करना है। 7 से डिवाइड किया, यहाँ 2 आ गया। अब हमें यहाँ दिख रहा है 6, तो 2 से 6 कैसे आता है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ गया 9। सो ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट रेशियोज। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन अ क्लास। फाइंड द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो निकालना है? फर्स्ट में गर्ल्स टू बॉयज, तो गर्ल्स का नंबर पहले लिखना है 15:20। पर हमने अभी कहा कि हम हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं, तो हम इसका 15/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड किया, ये आया 3/15 एंड 5 4 ज़ा 20। सो द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज 3:4। नेक्स्ट है गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स है 15, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 15 + 20 = 35। सो इसको कैसे निकालेंगे? 15:35 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। So 3/7 is the ratio of girls to total number of students. Next is boys to total number of students. Boys है 20, total number of students 35. Again divide by 5, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 4/7, 4/7 इनका HCF 1 है, या ये को प्राइम नंबर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रेशियो लिख दिया है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ 30 minutes to 1.5 hours. Again, we have to remember these two units should be same, only then can we compare. So ये तो 30 minutes है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 1 hour is 60 minutes plus 0.5 hour is 30 minutes. Total is 90 minutes. So 30/90 कैंसल, 30 से 30 HCF है, so 30 1 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90. So the ratio is 1:3. We can change 30 minutes to hour also. हाँ, यहाँ दोनों मिनट्स हैं, मिनट्स से मिनट्स को अगर डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अगेन if we want to change this into hour, so 30 minutes means half hour or 0.5 hour is to 1.5 hour. Again divide करें, 1.5 and 0.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि 1 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 5/15. 5/15 को कैंसिल करेंगे 1/3. सो अगेन सी द रेशियो इज 1/3 whether we change it into minutes or we change it into hours. The question is, are the ratios 25 gram is to 30 gram and 35 kilogram is to 42 kilogram in proportion? मतलब ये रेशियो और ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, या इक्वल है या नहीं।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपलेस्ट टर्म में चेंज कर देना पड़ेगा। सो 25/30 को अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में चेंज करें, ग्राम, 5 5s are 25 and 5 6 are 30. So this is in the ratio of 5:6. Again 35 और 42 को भी हम सिंपलेस्ट टर्म में चेंज कर देते हैं। इनका कॉमन फैक्टर 5 था, इनका कॉमन फैक्टर 7 है। 7 5s are 35, 7 6s are 42. सो अगेन यहाँ भी किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये भी है 5:6। अब ये सिंपलेस्ट टर्म में हमने लाकर देख लिया कि दोनों प्रोपोर्शनेट है, तो हमने ये लगा दिया यस दे आर प्रोपोर्शनेट। अब इफ टू ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion, 4 quantities are involved when taken in order are known as respective terms. इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है ये बाहर वाले टर्म्स है, ये बाहर लिखे हुए हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एंड दीज टू बीच में है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिडिल टर्म्स। और जब हमें प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई एंड डू वन क्वेश्चन। We have to find out whether 30, 40, 45 and 60 are in proportion or not. इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे हमने इसको किया था 30/40 को लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 3:4 आ गया फर्स्ट और सेकेंड टर्म को। ये 45 and 60 इसको करेंगे 5 and 15, 4s are 60. So this is 3:4. So these are in proportion. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 60 और मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 45. So they are equal. When they are equal, these numbers are in proportion. So हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, ये दोनों जो है ये है एक्सट्रीम टर्म्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। This question says find x, ये x यहाँ है, the unknown proportion। अच्छा, अभी बच्चे मैंने आप लोगों से कहा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और हम इसको फ्रैक्शन की तरह अगर लिख लें 3/9 और 9/x, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। और अगर हम प्रोपोर्शन में ही काम करें तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। दोनों में हमें एक जैसा ही काम करना है। अच्छा, यहाँ हमें देखना है 3 कैसे आ रहा है, 3 से 9 कैसे आ रहा है, तो वी विल से 3 3s are 9, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27 और हमारा प्रोपोर्शन ठीक हो गया। हम इस मेथड में करते हैं, यहाँ भी देखो हम यही काम कर रहे हैं। इधर हमने क्या किया, 3x, एक्सट्रीम टर्म्स क्या है 3 और x को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3x इज इक्वल टू 81। सो x इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ हम अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं,
x इज इक्वल टू 27, ये देखिए x इज इक्वल टू 27। तो कोई भी जगह अगर x आ जाए, अगर इस जगह यहाँ x है, अगर यहाँ x आ जाए 3x 9 27, तो भी हम ऐसा ही करेंगे। एक्सट्रीम टर्म्स क्या क्या है, 3 इंटू 27 एंड 9 इंटू एक्स। सो तो x यहाँ छोड़ दिया, 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 ज़ा 81। तो ये जो वैल्यू है इसका, x का वैल्यू 9 आ गया, जो कि 9 था, ये देखिए। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1200 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4:5:6। ए को मिलेगा 4, बी को मिलेगा 5 और सी को मिलेगा 6। पर कितने में से? 1200 को ये पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें 12 पार्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो कितने पार्ट्स में, एक बार 4 पार्ट्स में, दूसरे जने के लिए 5 पार्ट्स में, तीसरे जने के लिए 6 पार्ट्स में, तो टोटल हमें 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 4/15, ए को मिलेगा 4/15 ऑफ 1200, बी को मिलेगा 5/15 ऑफ 1200, सी को मिलेगा 6/15 ऑफ 1200। मतलब टोटल हम 1200 को 15 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तभी जाकर एक को 4, एक को 5 और एक को 6 मिल सकता है। तो हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर को 15 रखा है। 15 डिनोमिनेटर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर। आपसे कहा गया है, 4th में भी आपने पढ़ा है, 5th में भी आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ का तो मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। सो 15 से अगर डिवाइड करें तो एक एक पार्ट्स 80 का होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 80, 4 8 32 एंड 0। 15 से अगेन हम डिवाइड करेंगे, 5/15 इंटू 1 2 0 0, 5 8 40। सो 5 इंटू 80, इसको मिलेगा 5 8 40 एंड 0, 400। यहाँ अगेन 15 इंटू 1 2 0 0, 15 1 15, 15 8 1200, 6 8 48, 6 इंटू 80, तो 6 8 48 एंड 0। तो ए को मिलेगा 320, बी को मिलेगा 400, सी को मिलेगा 480। अब आप इसको ऐड करके देख लो कि ये आपके पास टोटल 1200 आ रहा है या नहीं। लेट्स ऐड 320, 400 एंड 480। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स में इसको मेन चीज को डिवाइड करना है। यहाँ 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में एक को 4 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, एक को 6 मिल रहा है। तो ये मेन चीज है कि इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो जो पार्ट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। If you found the video useful, like, share and subscribe.